वेलकम टू फाइनल ऑडिट मैराथन क्लास। आज की इस सेशन में आई एम गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर 8 ऑफ फाइनल ऑडिट स्पेशलाइज्ड एरियाज. इट कंप्राइजेस ऑफ 3 स्टैंडर्ड्स एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड: 800, 805, 810. These 3 standards are also auditing. ये ऑडिट ही है, but not the audit of GPFS, General Purpose FS की ऑडिट नहीं. Instead, this is the audit of SPFS, Special Purpose FS. हम लोग 200 से लेके 700 सीरीज तक जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, दैट इज ऑडिट ऑफ GPFS, जनरल पर्पस FS, एंड ये जो है दिस इज ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस FS. तो ये मेन डिस्टिंक्शन है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 3 स्टैंडर्ड्स? द फर्स्ट वन इज SPFS, हाईलाइटर कर रहा हूं मैं. स्पेशल पर्पस FS की ऑडिट जब आप करते हो तो आपको 200 to 700 के जो प्रिंसिपल्स हैं, टू दी एक्सटेंट दे आर रेलेवेंट एंड एप्लीकेबल, वो भी फॉलो करना पड़ता है. प्लस 800 में कुछ एक्स्ट्रा प्रिंसिपल्स एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बोले गए, वो फॉलो करने पड़ते हैं. 805 के अंदर 2 चीजें कवर्ड है: सिंगल FS एंड स्पेसिफिक एलिमेंट्स. मतलब इंस्टेड ऑफ ऑडिटिंग कंप्लीट FS, द क्लाइंट रिक्वायर्स a separate audit to be conducted of a single FS. मतलब out of the balance sheet, PL, cash flow, change in equity etc. सिर्फ cash flow की सपोज चाहिए, तो single FS की ऑडिट चाहिए, या फिर any particular specific element of the FS, जैसे trade receivables की ऑडिट, trade payables की ऑडिट, एक बहुत फेमस है IBNR रिपोर्ट, उसकी ऑडिट वैसा. एंड थर्ड 810, if the client is preparing summary FS, बहुत सारे clients नहीं बनाते हैं. कोविड के बाद समरी FS या अब्रिज्ड FS की परंपरा लगभग खत्म हो गई है. टुडे समरी FS इज बीइंग यूज्ड ओनली बाय म्यूचुअल फंड्स. तो अगर मेरा क्लाइंट समरी FS बना रहा है तो उस पर मुझे ऑडिट करना पड़ेगा, वो है समरी FS. ओके, सो एक प्रिलिमिनरी डिस्टिंक्शन समझ लो. 800 इज अबाउट स्पेशल पर्पस FS, 805 इज अबाउट सिंगल FS और स्पेसिफिक एलिमेंट, एंड 810 इज अबाउट समरी FS. ये जो रिविजन मैं कराने जा रहा हूं, अभी मैं स्टार्ट करूंगा. The purpose of this revision is, number 1, कि within 1 hour you can holistically see what this chapter is all about, what are the topics, explanation, concept, वो सब तो 1 hour के अंदर. Second purpose is कि even if you are watching it for the first time, beginner, तो भी तुमको मेरी बातें समझ में आएंगी. तो it is going to be a slow revision. मैं बड़ा पर नहीं बोलूँगा, I'll be doing slow revision so that you can understand even if you are watching this chapter for the first time. Okay, so let's start. इन तीनों स्टैंडर्ड्स में 3 टॉपिक्स कॉमन है. नंबर 1, एज अ CA शुड आई एक्सेप्ट दिस एंगेजमेंट और नॉट एक्सेप्ट दिस एंगेजमेंट. नंबर 2, इफ आई एक्सेप्ट, हाउ डू आई प्रोसीड टू प्लान एंड परफॉर्म द एंगेजमेंट. एंड नंबर 3, द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. तो इनमें ना रिपोर्ट्स के फॉर्मेट तीनों में अलग अलग टाइप के होते हैं. ओके, सबसे पहले आई विल डिस्कस SA 800 विथ यू. SA 800 इज अबाउट ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस FS. GPFS is a financial statement which meets the common information needs of wide variety of users. On the other hand, special purpose FS is a FS that meets the specific information requirements of specific users. तो उसको प्रिपेयर करने के लिए जो फ्रेमवर्क है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो भी डिफरेंट होगा. नाउ दे हैव गिवन अस, ICAI has given us 3 prominent examples of the special framework. Number 1, cash basis of accounting. Number 2, regulator. Number 3, contract. Okay, I'll discuss these examples with you. जैसे just for example, my client needs a loan from the bank. Okay, so bank has told the client कि आप ना accrual basis पे नहीं बल्कि cash basis पे अपने financial statements बना के हम लोग को दो. तो my client is preparing cash basis of accounting वाला FS only for the requirements of bank. That's one example. Second example, regulatory body. My client is an insurance company which is regulated by IRDA, Insurance Regulatory Development Authority. Now IRDA wants the insurance company to prepare FS in a particular way showing particular elements. Again, that's an SPFS, special purpose. Third, my client is being taken over or acquired by some other company. It's not a hostile takeover, it's a friendly merger. So the bigger company which is going to acquire my client, they want my client to prepare the FS showing the fair value of all the assets in a different way. So that again is a special purpose framework prescribed by the contract. सबसे favorite 2 example है ICAI का, financial reporting provisions prescribed by regulator या फिर financial reporting provisions specified in the contract of merger वगैरह. ये 2 सबसे famous है, contract and regulator. Okay,
Now, what are the considerations when you are accepting this engagement? The first point is accepting the engagement. Should I accept the engagement? Point number 1, I will accept this engagement only if the special purpose framework that the client is using is acceptable. If the framework is not acceptable, I will not accept. Now, acceptability of the special framework depends on the needs of the special user. It depends on the needs of the special user. Second, if the special framework is prescribed by a standard setting organization like ICAI, then the framework is acceptable to me. Or if the framework is prescribed by law or regulation, then again I will presume acceptable framework. So 3 points hai, 1, 2, 3. Okay, look at the heading carefully. Considerations when accepting the engagement. Achha, one thing I'll tell you before starting, look at this again. 800, 805, 810. These two standards, 800, 805, it is not necessary जो कंपनी का statutory auditor है वही ये दो engagement करे. 800, 805 में it is better if the stat auditor of GPFS does these engagement, but it's not compulsory. Company can hire a different chartered accountant. Whereas in 810, it is compulsory that only the stat auditor who has audited the complete FS will also audit the summary FS. तो यहाँ पर same CA को hire करना compulsory है, इन दोनों में compulsory नहीं है. You can have a different CA for these engagements, although it's not advisable, but allowed है. So look at this first heading. Should I accept this engagement or not accept the engagement? It depends on 3 things. Number 1, whether the financial reporting framework is acceptable for the specific user because it meets the needs of the user or not. Number 2, whether the special framework is prescribed by a standard setting organization like ICA or it is prescribed by law or regulation. Then I will presume it to be an acceptable framework and I will accept the engagement. Next, when you are planning and performing such an audit, 200 to 700 series के standards are going to apply to the extent they are relevant. For example, SA 200, I will comply with ethics, I will comply with independence, and I will follow all the relevant standards which can apply to the particular engagement. Number 2, 320, materiality calculation will be different. Of course, materiality calculation is based on the needs of the user, कि user मतलब user कितना misstatement tolerate कर सकता है. So let's say कि GPFS का user can tolerate a different level of misstatement and SPFS का user can tolerate a different level of misstatement. So the misstatement का tolerance is different, so materiality is different. Audit risk is different. Now the materiality for SPFS may be higher, may be lower than the materiality of GPFS. Third is 260. Usually the auditor communicates with TCWG, those charged with governance. But generally speaking, those charged with governance are responsible for overseeing the GPFS. They are not responsible for overseeing the SPFS. So those persons in the organization who are responsible for overseeing the special purpose FS, they are the new TCWG for me. So for SA 800, I will have to identify those persons, those TCWG members who are actually responsible for overseeing the SPFS. Then comes reporting format. इसमें जो reporting format होता है ना, it contains pretty much the same elements as SA 700, but the structure and the format is different. The layout is different. The ordering is different. जो items की ordering होती है वो अलग होती है. Now this आज तक this topic has not come in exam. Although they ask you to draft the opinion, that's 2 line. जो illustrations हम लोग class में discuss करते हैं. But ये वाली topic as such form and content, it has not come in exam. But I believe it's a potential topic, so ये आ सकता है. तो ना इसको याद करने के लिए मैं आपको कुछ बता देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ऑडिट रिपोर्ट में पर्पस होना जरूरी है कि दीज SPFS हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर विच यूजर एंड फॉर व्हाट पर्पस. नंबर 2, एनुअल रिपोर्ट, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रेमवर्क. इफ द मैनेजमेंट हैज अ चॉइस ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, मतलब मान लो कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में भी 2-3 ऑप्शंस है, तो इट इज मैनेजमेंट्स डिस्क्रिशन की कौन सा चुने. तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट हैज चोजन एन एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क और नॉट. अगर मुझे लगता है कि मुझे कैम देना चाहिए तो ऐसे 701 विल अप्लाई एंड आई विल पुट कैम ऑल्सो. नंबर 4, इफ द SPFS ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सम एनुअल रिपोर्ट, जैसे GPFS की एनुअल रिपोर्ट होती है तो लेट्स से SPFS की भी एनुअल रिपोर्ट है. सो इफ इट्स अ पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट, तो एनुअल रिपोर्ट मुझे अदर इन्फॉर्मेशन भी चेक करना पड़ेगा एंड जब अदर इन्फॉर्मेशन आता है तो ऐसे 720 विल अप्लाई. एंड लास्ट, I can put an OMP paragraph in the SPFS audit report. I'll make a reference
टू माई ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंप्लीट GPFS, मतलब जो GPFS में मेरी ऑडिट रिपोर्ट है ना, उस पर एक रेफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि मैंने GPFS का भी ऑडिट किया है. इफ़ आई हैव डन बोथ GPFS एंड SPFS, तो आई कैन ड्रॉ रेफरेंस कि आई हैव ऑल्सो ऑडिटेड द GPFS, उस पर ऑडिट रिपोर्ट है, प्लीज सी दैट. वहाँ पे मुर्गा है, मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, आई कैन ड्रॉ रेफरेंस. ओके, सो दीज आर द 5 पॉइंट्स, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ओके, तो ये जल्दी से तो आता नहीं है. नाउ नेक्स्ट, ये 2 टॉपिक्स बड़े कमाल के हैं. अगर ये SPFS है तो पक्की बात है कि स्पेशल पर्पस FS के नोट्स में स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क डिस्क्राइब्ड होगा. एंड नॉर्मली हम लोग फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस जिसको बोलते हैं कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस नीड नॉट बी एक्सप्लेन इन द नोट्स बिकॉज वो फंडामेंटल है. बट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क तो फंडामेंटल नहीं है, तो वो नोट्स में दिया हुआ है. तो आई विल वांट माय यूजर्स कि जाओ एक बार जाके पढ़ लो. आई विल वांट टू ड्रॉ देयर अटेंशन, दैट्स एन EMP पैराग्राफ. ओके, सिमिलरली आई विल आल्सो वांट टू पुट एन OMP पैराग्राफ clearly mentioning that my audit report on SPFS is not intended for all the users, it is intended only for specific users and for their purpose. तो इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, instead of calling EMP OMP, give it a title and merge the two. इन दोनों को merge कर दो. यहाँ EMP का पर्पस क्या है? To draw attention of the user to the basis of accounting used. और यहाँ OMP का पर्पस क्या है? टू पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माई ऑडिट रिपोर्ट एंड द यूज ऑफ माई ऑडिट रिपोर्ट. तो बोला ज्वाइन देम एंड डोंट कॉल देम EMP OMP, रादर यू कॉल अ वेरी सिंपल टाइटल. दैट टाइटल इज दिस वन. ठीक है, आप ओपिनियन के बाद लास्ट में एक डाल दो, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज, और जो भी आप बोलना चाहते हो EMP OMP में वही डाल दो. तो डोंट कॉल EMP OMP, इंस्टेड ऑफ that you give it a suitable heading. और यहां पे आप बता दो. ठीक है, सबसे पहले EMP, we draw attention to note number इतना which describes the base of accounting, and second OMP type कि these financial statements are prepared only for the purpose of these 2 companies and the specific user, hence it is not suitable for other users and our report is solely intended for them and not for other users. तो ये बता दो यहाँ पे. ओके, तो ये था सर SA 800. एक सिंपल तरीके से मैंने तुम लोगों को समझाया है SA 800. SA 800 को लेके और बाकी 3 को लेके भी आई वांट टू टेल यू वन थिंग. सी ऑल दीज स्पेशल स्टैंडर्ड्स हैव अ डिफरेंट रिपोर्टिंग फॉर्मेट. यहाँ SA 700 अप्लाई नहीं होता. SA 700 आने के पहले ना जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट था ना, उस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके इनकी रिपोर्ट्स ड्राफ्टेड है. फॉर एग्जाम्पल SA 700 में ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन इज ऑलवेज एट द टॉप, लेकिन इन सब में ओपिनियन इज ऑलवेज एट द बॉटम, जस्ट लाइक अर्लियर जब SA 700 नहीं था. तो इनके रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स जो होते हैं ना, वो SA 700 से एग्जैक्टली इंस्पायर्ड नहीं है, बल्कि 700 के पहले जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट था उससे इंस्पायर्ड है. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट 805. 805 में ना 2 आइटम्स है, एक ऑडिट ऑफ सिंगल FS एंड दूसरा ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट्स. दीज आर 2 सेपरेट थिंग्स. अभी क्लियर एग्जाम्पल के साथ नीचे मैं डिस्कस भी करूंगा तुम लोगों के साथ. ओके, कई स्टूडेंट्स जब 805 पढ़ते हैं या एग्जाम में आंसर लिखते हैं तो वो एक मिस्टेक करते हैं कि दे ओनली टॉक अबाउट द सिंगल FS, दे डोंट टॉक अबाउट स्पेसिफिक एलिमेंट्स. तो आपको दोनों बोलना है. व्हेनेवर यू आर टॉकिंग यू हैव टू टॉक अबाउट बोथ द थिंग्स, सिंगल FS एंड स्पेसिफिक एलिमेंट. सो व्हाट इज द डिस्टिंक्शन, वो मैं बता दूंगा तुम लोगों को. ओके, नाउ यहाँ पर बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. 805. ओके, कंटिन्यू करता हूँ मैं. सो सबसे पहले व्हाट इज सिंगल FS? दे हैव गिवन एन एग्जाम्पल. Let's say the special user is asking the client to prepare only cash flow statement as per direct method. So using a different framework, normally cash flow आप जानते हो कि हम लोग indirect method से बनाते हैं. But my client needs funding or loan from bank and bank has asked them to prepare cash flow statement as per direct method. So you are going to audit only cash flow statement. That's called a single financial statement. That's the only example ICAI has mentioned. बाकी ICAI has also given examples of specific element. स्पेसिफिक एलिमेंट मतलब होता है नॉट अ स्टेटमेंट बट वन पर्टिकुलर आइटम, उसी का शेड्यूल है. जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, इन्वेंटरी. और इंश्योरेंस कंपनी में होता है IBNR रिपोर्टिंग. दिस इज वेरी फेवरेट ऑफ ICAI. इस पे क्वेश्चन आते हैं. IBNR का मतलब होता है
इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड, मतलब मान लो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च बहुत सारा लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, बट उन्होंने अभी तक क्लेम फाइल नहीं किया है, वो ईयर एंड की बात करेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी नोज दिस कि बहुत सारा क्लेम्स आने वाला है, लायबिलिटी आने वाली है, तो एक एक्चुअरी से एस्टिमेट करवाना पड़ता है कि प्रॉबली कितने ऐसे क्लेम्स हो सकते हैं, लायबिलिटी हो सकते हैं जो हो तो चुके हैं बिफोर 31 मार्च बट विच विल बी रिपोर्टेड बाय द पॉलिसी होल्डर टू द इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर द ईयर एंड। तो उसका एस्टिमेट बना के एक IBNR रिपोर्ट बनता है एज पर एडा, तो वो IBNR रिपोर्ट की हम ऑडिट कर रहे हैं। तो ये सब है स्पेसिफिक एलिमेंट्स के एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पर भी आप देखोगे वही 3 मुद्दे आएंगे। पहला, शुड आई एक्सेप्ट द एंगेजमेंट और नॉट, सेकंड प्लानिंग परफॉर्मिंग, एंड तीसरा रिपोर्टिंग। सो मेरे सामने पहली टॉपिक आ गई है एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। नाउ एज आई टोल्ड यू, इट इज नॉट कंपल्सरी इन 800 and 805 that the statutory auditor himself should be the auditor here. You can have a different CA, but practically we know that it is better कि आप same CA से कराओ। The reason is कि same CA has already audited the complete FS and the GPFS, so he knows कि what he has a different level of understanding of the entity, environment, accounting records, तो वो करेगा तो काम better होगा। That is why if the company approaches another CA, not the auditor of the company but another CA for auditing this single FS or specific element, then the another CA should consider whether it is practicable to accept the engagement or not, because he does not have the same understanding of the entity environment, he does not have an understanding of the accounting records of the company, the quality of the accounting records. Also, the work is going to be disproportionate. Sir, why? I'll tell you why. एक बात आप सोचो ज़रा, सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट, they do not contain the complete picture, so the chances are that they have limited information which can be misleading for the user. Number 1. Number 2, आपको ये भी समझना पड़ेगा यहाँ पर कि items are interrelated. For example, if the client has told me कि आप trade receivables की audit करो, उसका schedule है, तो trade receivables is directly connected to sales and revenue recognition. So if I have not audited sales and revenue recognition, how can I perfectly audit trade receivables? तो मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जस्ट फॉर वन आइटम आई विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। मुझे ट्रेड रिसीवेबल, उससे जो कनेक्टेड आइटम्स है वो देखने पड़ेंगे, पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसी चेक करनी पड़ेगी। दैट्स टू मच ऑफ वर्क। सो इफ आई बिलीव दैट द वर्क इज डिसप्रोपोर्शनेट, आई विल आस्क द क्लाइंट कि प्लीज कन्वर्ट दिस एंगेजमेंट फ्रॉम 805 ऑडिट टू रिलेटेड सर्विस 4400। अब वो क्या होता है बताता हूँ। अंडर SRS 4400 विच इज कॉल्ड AUP एंगेजमेंट अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, वहाँ पर वी डोंट एक्सप्रेस ओपिनियन, वी डू द सेम वर्क। जैसे यहाँ 805 में ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर क्या प्रोसीजर लगाना है मैं सोचूंगा, क्या कंक्लूजन आएगा, क्या ओपिनियन है, सब मैं सोचूंगा और ओपिनियन दूंगा। तो माई लाइबिलिटी इज मोर बिकॉज आई एम एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। पर अगर डेटर्स के ऊपर वो मुझसे AUP एंगेजमेंट कराते हैं तो उसमें क्या होता है, क्लाइंट ओनली टेल्स मी व्हाट प्रोसीजर्स आई हैव टू परफॉर्म एंड I have to specify the results, the conclusions of each and every procedure without expressing opinion. मैं अक्सर क्लास में एक डायलॉग बोलता हूँ, AP, AE, AC, AO, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट कंक्लूजन, ऑडिट ओपिनियन। तो AUP एंगेजमेंट में ओपिनियन नहीं होता, सिर्फ कंक्लूजन होते हैं। मतलब 5 प्रोसीजर हमने किए और 5 प्रोसीजर के ये कंक्लूजन आए, जस्ट दैट यू हैव टू रिपोर्ट। तो यू आर डूइंग द सेम वर्क बट विदाउट ओपिनियन, सो आपकी लायबिलिटी कम हो जाती है। सो इफ द वर्क इज डिसप्रोपोर्शनेट, आई कैन रिक्वेस्ट द क्लाइंट टू कन्वर्ट इट इनटू 4400 एंगेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट बात है, एज यू नो कि सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट कंटेन्स लिमिटेड इंफॉर्मेशन, so it can be misleading. Therefore it is necessary कि we should give more disclosures than required. मतलब जो भी कंपनी ने FRF फॉलो किया है उस FRF में सिंगल एलिमेंट या सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट में और भी ज़्यादा डिस्क्लोजर्स होने चाहिए, सो दैट द यूजर कैन प्रॉपरली अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन दैट इज कन्वेड एंड द इफेक्ट ऑफ द मटीरियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स ऑन दैट इंफॉर्मेशन। तो आपको एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। ओके, the framework should provide for more and more disclosures on single FS and specific element, because ये जो सिंगल एफएस या एलिमेंट होते हैं जब ये कंप्लीट एफएस के साथ होते हैं ना तो पिक्चर बहुत क्लियर होती है, बट यहाँ पर आप कंप्लीट एफएस के डिटेल्स हटा रहे हो तो कॉन्टेक्स्ट गायब है। विदाउट कॉन्टेक्स्ट खाली आप उस एलिमेंट या उस एफएस को देख रहे हो तो योर अंडरस्टैंडिंग विल नॉट बी गुड, सो यू हैव टू गिव मोर एंड मोर डिस्क्लोजर्स। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। नाउ लेट्स से कि आई एम द स्टैट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, मैंने कंप्लीट एफएस की ऑडिट भी की है और मैं अब सिंगल एफएस या एलिमेंट की ऑडिट भी कर रहा हूँ।
तो द क्वेश्चन इज दैट कि सिंस आई हैव ऑलरेडी ऑडिटेड द कंप्लीटेड एफएस, आई हैव प्रोक्योर्ड लॉट ऑफ ऑडिट एविडेंस, कैन दोज ऑडिट एविडेंसेस बी यूज्ड फॉर दिस एंगेजमेंट? द आंसर इज येस. हाउएवर आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए. You should plan and perform the engagement as per 805 also. Matlab I can use the same evidence here also, but I have to do something extra. Auditor may be able to use the evidence obtained during audit of complete FS. However, I am also required to plan and perform the single FS and specific element to meet the needs of the user. तो कुछ extra भी करना पड़ेगा. Interrelated items, जैसे आप सोचो debtors के ऊपर अगर आप मुझसे ऑडिट करा रहे हो तो सर इट इज़ कनेक्टेड टू सेल्स एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन. तो अनलेस आई डू सेल्स एंड रेवेन्यू रिकॉग्निशन आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीटली ऑडिट द डेटर्स. तो मेहनत बढ़ गई. मटेरियलिटी, कंप्लीट एफएस की मटेरियलिटी वर्सेस सिंगल एफएस की मटेरियलिटी. डेफिनेटली सर सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट की मटेरियलिटी कंप्लीट एफएस से तो कम ही होगी. ये एमसीक्यू में आ सकता है. ओके, आप खुद ही सोचो. मटेरियलिटी का मतलब होता है टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट. अगर शेयर होल्डर कंप्लीटेड एफएस में 2 CR का 2 करोड़ का मिसस्टेटमेंट टॉलरेट कर सकता है, तो ये तो हो नहीं सकता कि सिंगल एफएस में वो बोलेगा कि ठीक है मैं 4 करोड़ टॉलरेट कर लूंगा. कम ही टॉलरेट करेगा. सो द मटेरियलिटी विल बी लोअर. द फॉर्म ऑफ ओपिनियन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिपीट करके पढ़ाता हूँ. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बोलते हैं कि देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आर ऑफ 2 टाइप्स, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क. फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में आपकी लैंग्वेज होती है ट्रू एंड फेयर व्यू या फिर प्रेजेंट्स फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट. और कंप्लायंस में आपकी लैंग्वेज में फेयर वर्ड नहीं आएगा. यू विल जस्ट से प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स. तो एवरी स्टूडेंट मस्ट नो दिस लैंग्वेज. दिस लैंग्वेज इज यूज्ड अक्रॉस ऑल द स्टैंडर्ड्स. ठीक है. सो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में द ओपिनियन में यू हैव गॉट 2 चॉइसेस, ट्रू एंड फेयर व्यू या प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट. कंप्लायंस में डोंट यूज द वर्ड फेयर, जस्ट से प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स. फॉर्मिंग एन ओपिनियन, दिस टॉपिक इज गुड, वेरी गुड. इससे क्वेश्चन बन सकता है. इट्स टेक्निकल. हेलो, लेट्स से आई हैव ऑडिटेड बोथ कंप्लीटेड एफएस and single FS or specific element. In my audit report on completed FS, I have expressed qualified opinion or maybe EMP, OMP or मुर्गा मतलब going concern etc. So मैंने अगर अपने completed FS वाले audit report में कुछ भी गंदा बोला है तो definitely it has an impact on my audit report on single FS. Now आप surety से ये नहीं बोल सकते कि सपोज अगर मैंने कंप्लीटेड एफएस में क्वालिफाइड ओपिनियन दिया तो यहाँ भी, बिकॉज सर द मैटर में बी डिफरेंट. फॉर एग्जांपल सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट जो है इट इज अबाउट डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स. ऑन दी अदर हैंड जो कंप्लीटेड एफएस में मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया इट इज अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. सर वो आइटम ही अलग है, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है. तब वहाँ क्वालिफाइड ओपिनियन और यहाँ अनमॉडिफाइड ओपिनियन हो सकता है. सो इन्होंने बोला बट यू हैव टू कंसिडर द इफेक्ट. So if my main audit report contains qualified opinion, I must consider the impact on the single FS or specific element wala audit report. So it depends on my professional judgment, and whenever professional judgment is involved, they will give you a list of factors. So factors to be considered for determining the implication of qualified opinion in the main audit report on the audit report of single FS. So इन्होंने बोला there are 5 factors. Number 1, the nature of the matter. क्या वो मैटर सेम है? मतलब एलिमेंट अगर ट्रेड रिसीवेबल है तो वहां पर क्वालिफिकेशन कंप्लीट एफएस में वो भी क्या ट्रेड रिसीवेबल पर है. सेकंड, परवेसिवनेस ऑफ द मैटर, ये मैटर करता है. हो सकता है कि मैटर अलग अलग हो, बट इफ द मैटर इन द मेन ऑडिट रिपोर्ट इज मटीरियल एंड परवेसिव का मतलब विच अफेक्ट्स मेनी आइटम्स. सो हो सकता है दिस सिंगल एफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट मे गेट अफेक्टेड. सो परवेसिवनेस ऑफ द मैटर. थर्ड, ये भी तो हो सकता है सर कि completed FS जो है it was made as per GPFS and the single element of single FS or specific element is made as per special purpose framework. So if the framework is different तो भी फर्क पड़ेगा because a particular item which is wrong in one framework may be right in another framework. So differences between the applicable FRF of the 2 statements. Number 3,
डिफरेंस बिटवीन द पीरियड कवर्ड, जैसे कंप्लीटेड एफएस तो अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर का होता है, बट ये जरूरी नहीं है ना कि सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट सेम पीरियड का हो सकता है. इट कैन बी फॉर अ स्मॉलर पीरियड और अ लॉन्गर पीरियड. एंड लास्टली मेरी जो कंप्लीटेड एफएस वाली ऑडिट रिपोर्ट है वो डेट और इस सिंगल एफएस वाली जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट है इसमें कितना गैप है, टाइम elapsed. ओके, यहां तक क्लियर है. नाउ लेट्स से ये एक डिफरेंट टॉपिक है. लेट्स से माय क्लाइंट मेक्स एन एनुअल रिपोर्ट विच कंटेन्स बोथ द कंप्लीटेड एफएस एज वेल एज द सिंगल एफएस और स्पेसिफिक एलिमेंट. तो एज एन ऑडिटर मुझे भी दो रिपोर्ट देना, वो दोनों रिपोर्ट इसमें जाएगी, एक जनरल ऑडिट रिपोर्ट और एक 805 वाली ऑडिट रिपोर्ट. I must see that the two are clearly differentiated. If not, I will ask the management to differentiate them. एकदम अलग अलग. अगर मैनेजमेंट डिफरेंशिएट नहीं करेगी तो फिर I will not issue audit report on single FS until management differentiate कर दे. So if both the complete FS and the single FS goes in the same document, then they should be clearly differentiated. If management refuses to differentiate it, I will not issue the audit report on single FS or specific element. ये if my audit report, main audit report on complete FS contains anything dirty like EMP, OMP, modified opinion, going concern, या MMS in OI, other information, then I will consider the implications on the audit report on single FS and specific element. ये full एक पैकेज है, ये 2, 3, 4 एक पैकेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस भी हैं. मान लो कि मेरी जो कंप्लीट एफएस वाली ऑडिट रिपोर्ट है उसमें एकदम डर्टीएस्ट, सबसे गंदा, सुपर गंदा एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया हुआ है. ठीक है, द ऑडिट रिपोर्ट ऑन द कंप्लीट एफएस कंटेन्स सुपर गंदा एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर. तब जाहिर सी बात है कि आप सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट, क्योंकि सुपर गंदा का मतलब होता है मटीरियल एंड परवेजिव विच अफेक्ट्स मेनी आइटम्स, तब फिर उस केस में सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट पे यू शुडंट एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन. दैट इज व्हाट द जनरल रूल सेज. बट देन देयर इज एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या है? सपोज मैं जिस चीज का ऑडिट कर रहा हूं वो सिंगल एफएस नहीं है, वो स्पेसिफिक एलिमेंट है. जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स का शेड्यूल है, मैं उसकी ऑडिट कर रहा हूं. तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है, तब इन दैट केस डिस्पाइट द फैक्ट कि कंप्लीट एफएस पे एडवर्स या डिस्क्लेमर है, मैं इस पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता हूं. नॉर्मल रूल क्या है? अगर कंप्लीटेड एफएस वाले ऑडिट रिपोर्ट में एडवर्स या डिस्क्लेमर है, बहुत गंदा, सुपर गंदा एडवर्स या डिस्क्लेमर, तब मैं सिंगल एफएस या स्पेसिफिक एलिमेंट वाले ऑडिट रिपोर्ट में अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकता. हाउएवर स्पेसिफिक एलिमेंट वाले में मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता हूं इफ ऑल दीज 3 कंडीशंस आर सैटिस्फाइड. ये तीनों कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए. इनको याद करने के लिए मैं बोलता हूं नॉट PPP, मतलब it is not prohibited by law, the 2 documents are not published together, and the specific element is not a major portion of the complete FS. तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो स्पेसिफिक एलिमेंट वाले पे मैं अनमॉडिफाइड दे सकता हूं. बट दिस एक्सेप्शन डज नॉट अप्लाई ऑन सिंगल एफएस. अगर सिंगल एफएस है, मान लो कि मैंने यहां पर एकदम सुपर गंदा दिया है, तो सिंगल एफएस इज डीम्ड टू बी अ मेजर पोर्शन ऑफ द कंप्लीट एफएस और उस पर आप अनमॉडिफाइड नहीं दे सकते. अबव एक्सेप्शन डज नॉट अप्लाई ऑन सिंगल एफएस बिकॉज a single FS is deemed to constitute a major portion of the completed FS. Okay, this was revision of 805. ये मेरे ख्याल से जितना मैंने समझाया है, एकदम स्लो कर करके मैंने समझाया है, बातों को बोला है. ऑब्वियसली द लेक्चर वॉज अ लिटिल वर्बोस. वर्बोस बोलने का मतलब है टू मच ऑफ इंग्लिश वॉज देयर, बिकॉज ये सब शब्द ऐसे हैं कि पूरे बोलने पड़ते हैं. या तो मैं शब्दों को खा जाऊं और कम बोलूं तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू रीड द सेंटेंसेस, बिकॉज बुक की जो लैंग्वेज या सेंटेंसेस है वो तो हमें फ्रेम करनी आनी चाहिए, नहीं तो हमारे आंसर अच्छे नहीं होंगे. So the diction was a little bit of verbose because I have to say the same thing again and again and again. But other than that, it was conceptually very good. I think first time भी अगर तुमने सुना होगा तो तुमको 800 और 805 का एक taste, एक flavor मिला ही होगा. Now I'll go to the third standard in this series, 810. It's about summary financial statements. Summary financial statements यानी कि abridged यानी कि short financial statements which is made using
जो कंप्लीट एफएस होते हैं ना, कंप्लीट फुल एफएस, उसको इस 810 स्टैंडर्ड में बोला जाता है ऑडिटेड एफएस, ठीक है। उसके ऊपर वी अप्लाई सम क्राइटेरिया, सेक्शन 136 ऑफ कंपनी लॉ, रूल 10, फॉर्म AOC 33A, एंड वी कन्वर्ट इट इनटू समरी एफएस या अब्रिज, अब्रिज मतलब एक ही होता है, समरी एफएस, ठीक है। यहाँ पर सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों की ऑडिट करेगा, ऑडिटेड एफएस की भी और समरी एफएस की भी। द समरी एफएस इज डिराइव्ड फ्रॉम द ऑडिटेड एफएस बाय अप्लाइंग द क्राइटेरिया मेंशन्ड, ओके। नाउ यहाँ पे मेरा ओपिनियन क्या होता है, देखो ऑडिटेड एफएस मेन है, वो तो मैंने ऑडिट किया ही है और सेम सीए करता है। यहाँ पे मैं समरी एफएस के ऊपर एक रिपोर्ट देता हूँ, उसमें मैं क्लियर लिखता हूँ दैट इट इज अ फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड एफएस, मतलब समरी एफएस इज अ फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड एफएस, या फिर समरी एफएस इज कंसिस्टेंट विद द ऑडिटेड एफएस। ये दो लैंग्वेज होती है यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक। ज्यादा फेमस है फेयर समरी, ओके। सो समरी एफएस की जो परंपरा है ना कि छोटा एफएस बना दो समरी और बांट दो, ये परंपरा आफ्टर 2020 खत्म हो चुकी थी। बिकॉज पहले ये परंपरा क्यों थी कि कंपनी हैज टू लाइक सर्कुलेट मोटा एनुअल रिपोर्ट टू सो मेनी शेयरहोल्डर्स विच इज वेरी कॉस्टली, द कोरियर चार्जेस एज वेल एज द प्रिंटिंग कॉस्ट। सो टू अवॉइड दैट कंपनी क्या करती थी, कंप्लीट ऑडिटेड एफएस वेबसाइट पे डाल देती थी और एक समरी एफएस बनाती थी, प्रिंट कराती थी, सर्कुलेट करती थी। यूजुअली दिस वाज डन बाय टेलीकॉम कंपनी सच एज एयरटेल वगैरह, ओके। लेकिन 2020 में सबको ऑनलाइन की आदत हो गई, कंपनीज ने फिजिकल प्रिंटेड रिपोर्ट बांटना बंद कर दिया। नाउ इट इज होस्टेड ऑन द वेबसाइट एंड ईमेल टू द इन्वेस्टर। तो जब आप ईमेल ही कर रहे हो तब आपको समरी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, बनाने की भी जरूरत नहीं है। सो ऑल द कंपनीज हैव स्टॉप्ड समरी एफएस। केवल म्यूचुअल फंड्स में आज भी आपको समरी एफएस देखने को मिलेगा, ठीक है। So what is summary FS, sir? Summary FS is nothing but it is a version, it is a smaller version of the complete audited FS. It contains very less details. Will you accept this engagement? Only if you are the chartered accountant who has audited the complete FS. तभी आप accept करोगे, वरना नहीं, ठीक है। Same CA करना mandatory यहाँ पे। Now before accepting the engagement, you have to consider three things. Number one, मैनेजमेंट ने जो अप्लाइड क्राइटेरिया यूज करके समरी बनाई है, अप्लाइड क्राइटेरिया क्या है, सेक्शन 136 ऑफ कंपनीज एक्ट, रूल 3, फॉर्म AOC 3 या 3A, 3AS के लिए होता है और इंड AS के लिए 3A होता है। सो वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया यूज बाय द मैनेजमेंट फॉर प्रिपेयरिंग द समरी इज एक्सेप्टेबल और नॉट। देखो समरी हर कोई अपने स्टाइल से बनाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। सो देयर हैज टू बी सम क्राइटेरिया जिसके थ्रू समरी बनना चाहिए। तो मैनेजमेंट ने जो भी क्राइटेरिया यूज किया है, क्या वो सही क्राइटेरिया है कि नहीं है? बिकॉज आप याद रखना, समरी ऑलवेज हैज ऑडिट रिस्क, बिकॉज आप बहुत सारे डिस्क्लोजर्स उड़ा देते हो, कॉन्टेक्स्ट हटा देते हो। सो समरी एफएस बिकम्स मिसलीडिंग टू द यूजर. That is why the risk is high. So determine whether the applicable criteria used by the management for making the summary FS is acceptable or not. That's the first point. Second, आप मैनेजमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन करो, मैनेजमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन करो कि उन्होंने समरी एफएस को अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से बनाया। जो शेयर होल्डर डिटेल्ड एफएस, ऑडिटेड एफएस मांगेगा उसको इजीली अवेलेबल करा दिया जाएगा विदाउट डिफिकल्टी, मतलब वेबसाइट पे डाला हुआ है, एनीबडी कैन डाउनलोड दैट। एंड नंबर 3, जहां जहां मैनेजमेंट समरी एफएस बांटेगी उसके साथ मेरी ऑडिट रिपोर्ट भी बांटनी पड़ेगी। फॉर्म ऑफ ओपिनियन मैनेजमेंट के साथ एग्री कर लो कि यहाँ ओपिनियन कैसा होगा, यहाँ ओपिनियन वही होगा दैट समरी एफएस इज अ फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड एफएस। प्रोसीजर्स, द नेचर ऑफ द प्रोसीजर्स। फर्स्ट पॉइंट, ये हम लोगों को रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये समरी एफएस है। नंबर 2, ठीक है, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि ऑडिटेड एफएस अगर आपको चाहिए तो कहाँ से अवेलेबल है, डिटेल वाला वेबसाइट से है या राइट टू द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। थर्ड, डिस्क्लोज द अप्लाइड क्राइटेरिया। फोर्थ, I as the chartered accountant have to compare the numbers in the summary FS with the numbers given in the audited FS. I will see whether the criteria has been properly applied for preparation of summary FS. It should not be misleading, all the disclosure should be there. And number 5, whosoever requires complete audited FS, it should be made available to them without any undue difficulty. Form of opinion, वही सर या तो फेयर समरी बोल लो या
कंसिस्टेंट बोल लो, दो में से कोई एक, ज़्यादा प्रसिद्ध, फेयर, समरी। मेरे ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आइटम्स आएंगे, जो समरी एफएस पे जो ऑडिट रिपोर्ट था उसमें क्या क्या आएगा, बाकी सब तो ठीक है, ये एफ एच जे ये थोड़ा स्टार है। हम लोग अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक वार्निंग देंगे कि समरी एफएस डू नॉट कंटेन ऑल द डिस्क्लोजर्स दैट आर रिक्वायर्ड and hence reading the summary FS is not a substitute for reading the complete audited FS। तो एक वार्निंग दे दो। फिर रेफरेंस टू द ओपिनियन, हम लोग ये भी यहाँ पे लिख के देते हैं समरी एफएस वाली रिपोर्ट में कि हमने अपने मेन ऑडिट रिपोर्ट में कौन सा ओपिनियन दिया था, यूओ, क्यूओ, एओ, डीओ, वो बताना पड़ता है। एंड लास्टली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू सी वेदर द समरी एफएस इज अ फेयर समरी और इज कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स विद द ऑडिटेड एफएस। फिर वही सिग्नेचर प्लेस डेट। अच्छा, अब ये वाली टॉपिक भी बड़ी मस्त होने जा रही है। ओके, आगे बढ़ने के पहले क्लियरली समझ लो, कंप्लीट एफएस पे या ऑडिटेड एफएस पे जब हम ओपिनियन देते हैं तो वहाँ मेरा ओपिनियन क्या होता है, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। समरी एफएस में मैं ये नहीं बोलता कि समरी एफएस गिव्स ऑल इन्फॉर्मेशन एज पर फ्रेमवर्क, नहीं। समरी एफएस में मैं ये बोलता हूँ कि समरी एफएस इज अ फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड एफएस। तो ये एकदम अलग ओपिनियन है। तो यानी इस ओपिनियन का इस ओपिनियन से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज वाई आप अपने मेन रिपोर्ट में जो जो ओपिनियन देते हो, क्यूओ, एओ, डीओ वगैरह, वो आपको यहाँ पर भी डालना पड़ता है। और अगर कल को बुरा ना हो, पर अगर ऑडिटेड एफएस में आपने गंदा वाला कुछ डाला है, गंदा वाला मतलब क्यूओ, एएमपी, एओ, डीओ नहीं, क्यूओ, क्वालिफाइड ओपिनियन, ईएमपी, ओएमपी, मुर्गा, वो सब, तब आपको वो उनका रेफरेंस यहाँ भी देना पड़ेगा समरी एफएस वाले ऑडिट रिपोर्ट में भी। ठीक है, स्टेट दैट द, उसमें लिखना पड़ेगा दैट द ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड एफएस कंटेन्स दीज आइटम्स, और उनका ब्रीफ एक डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। लेकिन सबसे खतरनाक जबरदस्त, अगर इन्होंने मेन ऑडिट रिपोर्ट में हमने सुपर गंदा लिखा है, एडवर्स या डिस्क्लेमर, तब फिर हम समरी एफएस में कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उसको बोला जाता है डिनायल ऑफ ओपिनियन। दिस इज नॉट डिस्क्लेमर, दिस इज डिनायल ऑफ ओपिनियन। एक तरफ आप ऑडिट एफएस में बोल रहे हो कि बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा है, ऊपर से आप समरी एफएस में ये लिख के जाओगे इट इज अ फेयर समरी ऑफ दैट, ये अच्छी बात नहीं है। आप ओपिनियन दो ही मत। अरे अगर ऑडिटेड एफएस ही सुपर गंदा है, उसमें एडवर्स या डिस्क्लेमर है, तब उसकी फेयर समरी बनाकर भी क्या अचार डालेंगे क्या? तो वहां पे इन्होंने बोला इट इज इनअप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, दिस इज नोन एज डिनायल ऑफ ओपिनियन। ठीक है, ये डिस्क्लेमर नहीं है, याद रखना एमसीक्यू के लिए। ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड में लिखा हुआ मिलेगा डिनायल, आईसीए किताब में नहीं है पर ओरिजिनल स्टैंडर्ड में है, ओरिजिनल स्टैंडर्ड में है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट केस, मान लो कि ऑडिटेड एफएस इज नाइस, ट्रू एंड फेयर व्यू, बट जो समरी एफएस बनाए गए हैं वो अच्छा समरी नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज नॉट अ फेयर समरी, एडवर्स ओपिनियन, मतलब ये नॉट अ फेयर समरी। ओके, यहां पर भी आप एक ईएमपी ओएमपी का कॉम्बो डाल सकते हो, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज, क्योंकि ये बना सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये तुम यहां पर डाल सकते हो। ओके, सो दैट इज ऐसे 810। विद दिस चैप्टर 8 का हम लोगों ने रिवीजन कंप्लीट किया। आई थिंक इट वाज अ स्मॉल वन, 40 मिनट्स हुए हैं कुछ। 40 मिनट्स में एक कंप्लीट आपको तीनों स्टैंडर्ड्स की पिक्चर मिली है, बातों को समझाया, कंसेप्ट को समझाया मैंने। आगे वाले स्टैंडर्ड्स और चैप्टर्स में भी ऐसे में बरकरार रखूंगा मेहनत। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।